किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। Under Prime Minister Narendra Modi, India has emerged as a decisive architect in shaping a multipolar world. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. These two leaders, captured in two moments, tells the story of India's transformation. From hesitation to decisive action and global leadership. Modi's governance challenges inertia with a blend of pragmatism and vision. चलता है, ये तो ठीक है, अरे चलने दो। मैं समझता हूं चलता है का जमाना चला गया, अब तो आवाज यही उठे कि बदला है, बदल रहा है, बदल सकता है। From the narrow lanes of Vadnagar to the corridors of power, Narendra Modi embodies resilience, discipline, and relentless determination. Setbacks never define his leadership. Modi nurtures his teams through adversity, ensuring failures are reframed as stepping stones towards innovation and achievement. ये विजय, कभी हम ये गलती ना करें। देखिए, मुझे टिकट दिया तो कैसा जीत गया, अब तक उसको मिलता था नहीं जीतता था, ऐसे भ्रम में हम ना रहे। आज हमने जो कुछ भी पाया है वो पांच पीढ़ी खप गई है तब आया है। Service to the nation remains the cornerstone of his philosophy. क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। He shares in the sacrifices and joys of those who safeguard the nation, recognizing that leadership is inseparable from empathy and solidarity. Over the last decade, India has redefined its path of growth and development. Cities are now better connected, infrastructure stronger, and opportunities wider than ever before. आप याद करिए 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है।
Modi's infrastructure vision transforms daily life, connecting people, powering opportunities, and laying the foundations for a modern, resilient India. He balances ambition with foresight, ensuring that economic growth, defense preparedness, and technological innovation safeguard both the nation and its citizens. Through the technological integration and diplomatic dexterity, Modi positions India as a reliable global partner while delivering tangible benefits to citizens. जनधन, आधार, मोबाइल, ये जो त्रिशक्ति है, और उसने सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उस योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में 27 लाख करोड़ रुपया इस देश के नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया। Whether defending national pride or rejuvenating cultural heritage, Modi exemplifies courage and vision, inspiring the nation to uphold its identity while reaching for the future. He leads from the front, showing that leadership is not just about giving grand speeches, but about action on the ground. अगर हम सब मिलकर के इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे देशों में हमारा नाम नहीं होगा। हम भी उस जगह को बना सकते हैं। भारत ये कर सकता है, भारतवासी कर सकते हैं। अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते? हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे। Social and economic policies are designed with inclusivity, ensuring that the poorest and most vulnerable are partners in India's progress. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। Whether confronting pandemics, natural disasters, or national challenges, he is present on the ground, guiding response efforts, protecting lives, and strengthening the nation's resilience. हम निरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना वायरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन 2 महीनों में भारत के 130 करोड़ नागरिकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला किया है। Here is a leader who confronts international challenges head-on, placing the nation's people above politics or personal cost. भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। In Modi's India, citizens are not mere spectators. They are active participants in India's transformation. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
इसी श्रद्धा के साथ हम सब जुट चुके हैं, लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। The world recognizes India's ascendancy not only as an economic powerhouse but as a strategic and ethical actor shaping global norms. Under Modi, economic development and cultural revival advance in tandem. ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। Prime Minister Modi has proven that culture guides development, demonstrating that progress and legacy are not mutually exclusive. चोला युग में भारत ने जिस आर्थिक और सामरिक उन्नति का शिखर छुआ है, वो आज भी हमारी प्रेरणा है। राजा चोला ने एक पावरफुल नेवी बनाई, राजेंद्र चोला ने इसे और सुदृढ़ किया। भारत हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अपनी महानता के बीच भी राजेंद्र चोला ने विनम्रता दिखाई थी। आज का नया भारत इसी भावना पर आगे बढ़ रहा है। हम लगातार मजबूत हो रहे हैं, लेकिन हमारी भावना विश्व बंधु की है, विश्व कल्याण की है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो, तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। विश्व के 80 से ज्यादा देश ऐसे होंगे जिनको पिछले 2 साल में भारतीयों के साथ साथ संकट से बचाने का बड़ा काम विदेश विभाग के नेतृत्व में भारत ने किया। नेपाल में भूकंप आया, उस भूकंप के बाद हम अपने भारतीय भाइयों की चिंता कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने मानवता के आधार पर जिसकी मदद कर सकते हैं उन सबकी मदद पहुंचाई। संकट शायद यमन का हो, संकट शायद मालदीव का हो, मानवता ये हमारा सेंट्रल इंस्पिरेशन रहा। From humble beginnings to shaping the soul of the nation,
Narendra Modi's journey reached a historic crescendo with the inauguration of the Ram Mandir in Ayodhya. आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। आज दिन, दिशाएं, दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। Today, India stands stronger, resilient and proud for a future where development meets legacy, where every citizen's potential is realized.